یا حیو یا قیوم یا رزاقو، یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنے سے کیا ملتا ہے، آپ اگر جان جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، قرآن پاک کی ایک مبارک سورت بھی ہے جس سورت کے اندر اللہ پاک نے اتنے خزانے رکھے ہیں، اتنے وسیع و عریض خزانے رکھے ہیں، جان جائیں گے تو یقین کریں آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اور اللہ پاک کے 3 صفاتی نام یا حیو یا قیوم یا رزاقو، ان تینوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، فوری قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹا عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا۔ کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے ناظرین۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور آپ کا جو اس کا دل ہے کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں،
अच्छे डॉक्टरों को चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिस्क को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, और आपकी जो एक ख्वाहिश हो कि आपकी अपनी जाती शानदार सवारी हो, आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, कारोबार में इतनी बरकत हो कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। कि नाज़रीन, अब वो वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि हमने एक सिलसिले का आगाज किया है दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में। अगर आप भी अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। हमारे जो बताए गए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आपकी जिंदगी को आसान बना सके। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे जवाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र है, और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते रहते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है, फिर हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि तू हमें रिस्क नहीं देता, हमारे लिए आसानियां पैदा नहीं करता, हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। असल में हमें अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता, हम लोगों ने मेहनत नहीं करनी, बस सोचते हैं कि रात को सोएं और सुबह उठते ही दौलत का अंबार मिल जाए। तो नाज़रीन, आज का वजीफा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। ये वजीफा आपको इस मुश्किल से, इस मुश्किल वक्त से निकाल कर आपके लिए आसानी का रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी जिंदगी आप इस बंदाए नाचीज को दुआएं देंगे। इस वजीफे को आप एक मर्तबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको ये अमल सिर्फ एक मर्तबा करना होगा। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत को पढ़कर, यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद, हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, और वो इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी ऐसी गैबी मदद करता है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं, और जो मोजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाक़ियात, जो वाक़ये मेरे सामने पेश आए हैं, जो मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से मैं आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने करना है। सबसे पहले तो आप जब ज़ोहर की नमाज अदा कर ले, उसकी एक और शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमाअत अदा करनी है। वो बाजमाअत नमाज अदा करने की वजह से ये करते हैं कि इस वजीफे का असर तभी होगा जब आप बाजमाअत नमाज अदा करेंगे। और खातून यानी कि खवातीन इस वजीफे को घर में ही कर सकती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादातर इनकी ये कोताही होती है और उनकी सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते और घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो बाजमात अदा करनी है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आप इस सूरत को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसके असर और फायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो जब आपने ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करनी है तो इसके बाद एक दुआ होती है। नाज़रीन, जो फर्ज नमाज के बाद बाजमात नमाज अदा करती है तो सब हाथ उठाकर एक दुआ मांगते हैं। वो दुआ आपने मांगनी है
उसके बाद आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं। उसके लिए अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताए थे उसको पढ़कर एक तसव्वुर करना है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ेंगे, या हय्यू या कय्यूमु या रज़्ज़ाक़ु, इनको इकट्ठा पढ़ना है और इनकी आपने 3 तस्बीहात कम अज कम पढ़नी है। वैसे 313 मरतबा पढ़ेंगे तो ये कसरत में शुमार हो जाएगा, तो लिहाजा ये ज़्यादा अफजल रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर को 129 मरतबा आप लोग पढ़ लें और उसके बाद दोबारा से दुरूद इब्राहिमी आप लोग पढ़ लें। तो लिहाजा ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ करनी है अल्लाह पाक से। और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इन नामों के तर्जुमों को पहले मुलाहिजा कर लें ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग वजीफा कर क्या रहे हैं। तो लिहाजा या हय्यू हमेशा रहने वाले, या कय्यूमु हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले। तो लिहाजा या हय्यू हमेशा रहने वाले और या कय्यूमु हमेशा कायम रहने वाले, ये 2 तर्जुमे हो गए। और तीसरा नाम या रज़्ज़ाक़ु, ए रिज़्क़ देने वाले। जब मेरे प्यारे भाइयों इन तीनों नामों को आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, यानी कि तर्जुमा तो आपको पता है और यानी कि आपको ये भी पता है कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं। और जब आप लोग इस अमल को करेंगे इसकी ज्यादा फजीलतें आप लोगों को हासिल होंगी। तो लिहाजा और जो सूरह मुबारक है सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब बेशक हमने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा, या बेशुमार कसरत अता करी, या कौसर से नवाजा। ये बहुत सारे तर्जुमे हैं लेकिन सबसे आसान तर्जुमा क्या है, बेशक कोई शक नहीं है हमने आपको कसरत अता करी। तो आप क्या करो, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप अल्लाह की इबादत करो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिया हुवल अबतर, बेशक जो तुमसे बुग़्ज़ रखे वही हर खैर से महरूम है। तो प्यारे दोस्तों, ये तर्जुमे हो गए। इस अमल को जब आप लोग तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फजीलतें हासिल होंगी, क्योंकि अमूमन तौर पर होता यही है कि हम लोग अमल करते हैं, वजीफे करते हैं, उनके मायने हमें पता नहीं होते। जब तक हमें उसके मायने पता नहीं होंगे तब तक हम उस अमल की मुराद तक नहीं पहुंचेंगे। प्यारे दोस्तों, दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा, दुआ अच्छे तरीके से करिएगा। अल्लाह पाक से रोक के गिड़गिड़ा कर आप लोगों ने दुआ मांगनी है। पहले आप लोग अल्लाह पाक की हम्द व सना करें जैसा कि दुआ करने का तरीक़ेकार हमें बताया गया है। तो लिहाजा पहले अल्लाह पाक की तारीफ बयान करें, उसके बाद आप लोग अपनी हाजतों का भी अल्लाह पाक के आगे इसरार कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहता है अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को अपने हबीब के सदके कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह पाक उन सब को अपने गैबी खजानों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।